सो काफी लोग हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो लोगों में जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी कि हाँ हमें भी पूछना है, तो वी कैन आस्क। बट पहला क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूँ। इट इज वेरी सिंपल टू यू कि जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज आपने कैसे एक्वायर किया, कैसे आपके पास इतना नॉलेज आया। एक सिंपल क्वेश्चन जो हर कोई आपको देखता है, आपका नाम सुनता है, जहां कहीं भी आपका फोटो देखता है, वीडियो देखता है, उसके मन के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि इतने छोटे से बच्चे में इतना सारा नॉलेज कैसे आ सकता है। तो वो किस तरह से आया उसके बारे में कुछ बात आप यहाँ कीजिए। See, knowledge is everywhere. Yeah. You can take it as per you want. Well, as a kid, like what I did, like there were conversations happening in the house, so I just took part in it, and I was just listening to them and due to the audit, and I took help from my auditory intelligence and did it. So well, also I visualized everything, and also visual intelligence even helped me. Okay, બહુ સરસ પ્રશ્ન. થોડું ગુજરાતી પણ કરી દઉં, કદાચ એવું લાગે છે કે સમજી ગયા. હા, કરવા જેવું લાગે છે. એમણે બહુ સરસ વાત કરી. એમણે એવું કીધું કે નોલેજ બધી જ જગ્યાએ છે અને ઘરની અંદર પણ નાના મોટા કન્વર્સેશન થતા હોય ત્યારે હું એમાં ઇન્ક્લુડ થતો અને મારા મધર ફાધર એ વસ્તુ મને સમજાવતા. જો બહુ અગત્યની વસ્તુ છે. આપણા ઘરના કન્વર્સેશનમાં છોકરો કંઈક પૂછે તો આપણે શું કહીએ? બે છ નંબરનો ભાઈ જા, તારું કામ નહીં, હવે વચ્ચે નહીં બોલવાનું. But that is not a right parenting method. This is the parenting method કે એમના માતા પિતાએ ઓલવેઝ એમના જે કંઈ ક્વેશ્ચન હતા એને વેલકમ કર્યા અને એને સમજાવવા માટે, એક્સપ્લેન કરવા માટે એમને જે કંઈ પણ આપી શકાય. તો એમનું કારણ એ છે, એ કહે છે એવું કે ભાઈ એના લીધે જે કંઈ નોલેજ છે એ પછી એ યાદ રાખી શકતા, ઓડિટરી મેથડથી વિઝ્યુલાઇઝ કરી શકતા હતા, એટલે વિઝ્યુઅલ્સ મેથડથી, અને એ મેથડથી એ પોતે યાદશક્તિ આટલી બધી છે, નોલેજ એમણે એક્વાયર કરી છે. યસ, એનીબડી એલ્સ ક્વેશ્ચન who want to ask? Any other question? Yes? Yes, sir. Yes, please. Hello, Kautilya. Hello. Hi. आपने स्टडी में इम्प्रूवमेंट कैसे लाए और स्टार्टिंग कहाँ से किया जहाँ पे आप अभी इतने अच्छे स्कोरर और ये सब एक्वायर किया? Well, so for studying, I just took help from my Dadaji, my Papaji, and all my family members. And any question, what Uncle Jeevan said, that any question that they asked, I asked to them, they welcomed it. And if they didn't knew that question, the answer of that question, but still they find it and then answered me back. So, well, the curiosity of their aim was to just increase my curiosity level and never stop it. And after I was starting asking questions more and more and more. So that's why even that was a big plus point of that, how I increased my level of study and my level of intelligence. Thank you. દાદાજી ને પ્રશ્નો પૂછ્યા, પપ્પાને પ્રશ્નો પૂછ્યા, મમ્મીને પ્રશ્નો પૂછ્યા, અને પ્રશ્ન પૂછાય ત્યારે એ લોકો જવાબ આપતા, અને ન ખબર હોય તો શોધીને જવાબ આપતા. આપણે શું કે આવું ના હોય. હા, આપણે છોકરાઓને એવું શીખવાડી લે સારું, 17 સિંગો આવશે હોઈ જા. હવે આપણા છોકરાને ક્યાં દાડા 17 સિંગો એકવાર તો આવવા દો, જોઈ લઈએ આજે. આપણે એટલું બધું ફેક નોલેજ છોકરાઓના મનમાં ભરી દઈએ છીએ, અને જો આપણે એના ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપતા નથી એ એવું માની લે છે કે મારા મમ્મી પપ્પાને કંઈ ખબર પડતી નથી એટલે મારે હવે એમને કંઈ પૂછવાનું નથી. ધેટ્સ વાય જો મમ્મી પપ્પા નથી ખબર પડતી તો મારે ખબર પાડવાની જરૂર નથી એવું માનીને બાળકો એ ક્યુરિયોસિટી જ પોતાના મનની અંદર શું કરી નાખે છે, એને કિલ કરી નાખે છે, મારી નાખે છે, કારણ કે હવે મારે પ્રશ્ન પૂછવાનો મતલબ જ નથી. From the same egg, that's why it happens. વાહ. It has the same the identical twins. Maybe they have in 90% cases they have same sort of their behavior, intelligence, and also most important their figure of identification. Thank you. Yeah, good, very good. હવે જો બાળક આ બધા થોડા મેડિકલના પ્રશ્નો છે, પૂછનારે મેડિકલના પ્રશ્નો પૂછે છે અને જવાબ આપનાર બાળક પણ એ પ્રમાણે જવાબ આપી રહ્યા છે. વેરી નાઇસ. એની અધર ક્વેશ્ચન? યસ મેમ. Thank you. Hello, Kautilya. As we all know that you are a very bright child,
So you must have a very strong memory power. So how can we improve our child to strong their memory? See, the memory of a child is always strong, but it matters. Suppose you have a good brain, everybody has a good brain, but the difference is that if you want to use it, then it pays, but otherwise there is no use of it. If you want to use your brain, then it is just like an empty box that doesn't work. So, if you in any particular field, if you want to increase your memory power, then the most important thing that is to be needed is your interest in that field. If you're interested in that field, in that particular field, then of course you will have a great sort of intention, and you will have a great sort of memory in that field. Thank you. Can you give any one example of your memory, Kautilya? Any example you can show just here of memory जो आपने remember किया हो, ऐसा कुछ भी आप इन लोगों को दिखाना चाहते हो, ऐसा कुछ कि इतना आपको याद है या कुछ भी ऐसा? Well, you can ask it. You can ask it. नहीं, यहाँ तो सब है, जैसे भारत के सभी राज्यों के नाम या उसके कैपिटल्स. Well, that's something, yes. Okay. But that's something I heard. Okay. But that's something sort of cramming. Okay. Well, memory power it's often like it is confused with cramming. Memory is, suppose if you understand something and if you know it, if the concept is clear, if the conceptual learning is in you, then of course your memory power will increase. Sharp memory doesn't mean that you can cram anything like, but if you know the concept, the basic of it, and if you just remember it for a long period of time, until and unless it goes in your subconscious mind, then it means that you have a sharp and great memory power. Yeah, very nice. Kautilya, according to the way you said, what we perceived is that our education system is somewhat which is decreasing the interest of the students in the study, and that's why they are facing the memory problem. So do you want to say anything about this? Well, yes, but there is no sort of memory problem. Well, the problem that happens often in children is, regarding their scores and marks, is all dependent on their interest. That how they are interested in that field. Suppose somebody is good in that field, but in the different subject he is not good. He is good in that field because he is interested in it. If he likes the subject, then of course he will. Then of course he'll love to do it, and if he love to do it, then of course he'll do great in it, and his power of ability of intelligence, or whether it's physical or mental, it will boom up in a great level. It will just boom up from 0 to 100 level. So you can just imagine that if anybody is interested in a particular field, then he can do great. Very great. Please clap for him, because બહુ મોટી વાત એમને આ એક્સપ્લેન કરી છે જે દરેક પેરેન્ટ્સે આ મેસેજ લેવા જેવો છે, કારણ કે તમે માછલીને ઉડવાની કોમ્પિટિશનમાં મૂકો અને પછી પક્ષી સાથે કમ્પેર કરો. કોઈ બાળકને તરતા સારું આવડે, કોઈકને ઉડતા સારું આવડે, કોમ્પિટિશન એક જ સરખી થાય. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ઇઝ સો કે એ લોકોનો સ્ટડી માટેનો ઇન્ટરેસ્ટ જ જતો રહે, અને એઝ હી સેડ કે ઇન્ટરેસ્ટ નથી એટલે પછી બાળકોને આગળ સ્કોરિંગમાં ને બધે જ ઇશ્યુ થાય છે. તો બહુ જ મોટી વાત, बहुत बड़ी बात आपने ये बताई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, हेलो कौटिल्य. हेलो, आपको एक चीज बताओ, कंटिन्यू. आपको एक चीज बताओ कि ये हम सबको लगता है कि सिर्फ गूगल बॉय है. कल यहाँ पर कोई अवेलेबल होगा, पता नहीं कौन थे कौन नहीं था, पता नहीं, मगर आपको जो चीज पता है किसी भी गूगल बॉय है. इसके अलावा इसके पास और भी टैलेंट है. यहाँ पर कितने लोग थे इसका कल जो टैलेंट देखा, जो कभी सुना नहीं था, ऐसे लोग. इसका डांस जो था ऑसम, कभी शायद मेरे कौटिल्य पहली बार किया आपने कल डांस. आपके मामा ने बताया कि जो इतना खुल के यहाँ पर वो डांस कर रहा है, वो मतलब क्या पता गुजरात उसको पसंद आ गया कि क्या है, पता नहीं है. कल इतना खुल के डांस कर रहा था,
सबने देखा था कि ये मतलब सबको लगा कि ये डांस क्लास में जाके ये प्रैक्टिस करके आया होगा शायद। मैं उनकी मम्मी को पूछता हूँ कि वो कभी क्लास में जाता है क्या ये? तो वो कैसे सीखा वो पता है आपको? मतलब वो प्रैक्टिस टोटली प्रैक्टिस करता है ये? It is just like my hobby and I like to dance. That's why I just like to like shake my body in that way. I love to dance. कल एक देखा डांस का, आज नया पता चला कि वो स्विमिंग भी अच्छा कर लेता है। आप देखो कि मतलब मल्टीपर है, इसको मैं मल्टीपर बोलूंगा, अकेला गूगल नहीं बोलूंगा। इसके अंदर इतने टैलेंट है। आज नया पता चला कि उसने मुझे बताया कि मुझे स्विमिंग करना है उसमें। तो क्या बोलता है तू, रिस्की है वो मेरे लिए, तू अंदर जाएगा, अगर बाहर नहीं आएगा तो तेरी मम्मी मुझे मारेगी। उसने बोला डोंट वरी, मैं स्विमिंग कर लेता हूं। तो तू क्या क्या नहीं करता ये बता दे अभी, टोटली तू क्या नहीं करता ना, सभी ऑडियंस को बता कि तुझे क्या पता नहीं है। मैं क्या नहीं करता? नहीं नहीं, मैं वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकता। वेट लिफ्टिंग और ये सारे जो भारी भारी गेम होते हैं वो एक भी नहीं कर सकता। बोलिए बोलिए। Sure. Hi Kautilya. As sir mentioned that you are very good with geography, so I have. Well, not only with geography. Okay. Nowadays, my favorite field is astrophysics. Okay. So rather, it would be better that if you ask me for that because it's my because that was at the time when I was 5 years old. It was 6 years ago. But now, well, my interest changed many times. So now it's astrophysics. Thank you. Okay, so can I ask any specific question to geography because Sure. I had one confusion. So when I was reading relating to Saraghadi Fort, so right now I was searching on the maps, but I was not able to get it. So where exactly it is? What? You have Saraghadi Fort. It's in Khyber, I guess. It's showing on the as per Google. What are you saying, भैया? Mic की आवाज थोड़ी, your आवाज is not, your voice is not. Which fort? Saraghadi Fort Saraghadi Fort is in. is in. Are you aware about the Saraghadi battle? It Yes. is one of, from top 10 battles. It is one of the top 10 battles happened in 1897. Yes. So regarding that where exactly it is right now? Because I read it, it's in somewhere in Khyber in Pakistan, but I was unable to find it exactly. Like Well, exactly. I know a bit of it that it happened in the Sindh region. It is near Gujarat and Rajasthan only, just near about a bit 500 kilometers from the border, because it happened near the Sindh region, and it was the southeastern, near about the middle eastern part of Pakistan. Thank you. Next question. कौटिल्य, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जरा हिंदी में मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। What is the law of attraction and it works or not? आप सवाल तो इंग्लिश में पूछ रहे हैं। सवाल का जवाब। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिंदी नहीं पता है इसलिए वो है क्या? ओके। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ अट्रैक्शन है कि एवरीथिंग, हर चीज एक दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है, बिकॉज क्योंकि जिसका मास है, मास इज कांस्टेंट, एवरीबॉडी नोस। जब वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट करते हैं तब अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू जी, मतलब है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻11 into m1 जो एक ना चीज का मास है, into m2 मतलब जो दो
चीजें हैं, उनकी जो सेकंड चीज है उसके बीच की अट्रैक्शन निकालने के लिए, तो उसका मास अपॉन में जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। थैंक यू। सो आई थिंक आप ये भी जानना चाहते थे कि जो मेंटली हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, डू यू वांट टू नो समथिंग लाइक दैट? एक्चुअली ये तो कैलकुलेशन की बात हुई, मैं ये नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ये स्टेट करता है कि हर चीज एक दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करती है। मैं इनको अट्रैक्ट करूं, मैं आपको अट्रैक्ट करूं, आप मेरे को अट्रैक्ट कर लें, लेकिन इसका हमारा मास इतना कम है कि वो अट्रैक्शन फोर्स दिखाई नहीं दे रही है। थैंक यू। क्योंकि उसमें ना सब चीज ऊर्जा पे टिकी हुआ है, एनर्जी। ओके, तो अपने अंदर नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनर्जी। वो मास और ग्रेविटी के बीच में जो रेशियो है उस पर डिपेंड है, क्योंकि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, लेकिन एनर्जी इसके अंदर कहीं नहीं आती है। जस्ट शेक इट अंकल जी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। By which process the planets are formed? By which process the Planets are formed. Planets are formed. See, well, like all the planets of our solar system are formed because of the disintegration of the particles in the debris of sun. But normally, like if you talk about stars, then they're formed due to nebula. And like example, like solar nebula was formed due to our solar system was formed due to it. But जो most of the planets हैं वो डेब्रिस मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक स्टार से निकलते हैं उनकी वजह से उनके ठंडे होते हैं। सो our earth was also formed by the sun से एक पार्ट निकला था due to which our earth was formed. But normally if you talk about stars then they are formed due to nebulas and also for example, when the gas and the dust forms and it combines and forming of a nebula, then like protostar and this is a normal path of the formation of the star, and then it ends to a red giant, and then if it's a less than a main sequence star, then you can talk about white dwarf star and then black dwarf star. But if it is 8 and more, then it would be in a neutron or black hole. Thank you. Neutron star and black hole. I hope you get Clear? your answer. very good, very nice. Very nice question. Yes, Very yes, nice yes. answer. There. Yes. Okay, so from Earth you can determine the position of stars. Sorry, थोड़ा loudly बोलिए, यहाँ तक आपकी आवाज नहीं आ रही। So from Earth you can determine positions of star. Okay. So now if you are traveling in interstellar space, you are traveling in space. Okay. Vacuum. You Yeah. mean vacuum? Yeah, I mean like in space you are traveling. Okay, interstellar space. So you want to determine your position. So how will you determine your position, exact position? Where are you? Because there is no Google Maps available. So how will you determine your position, where you are exactly? Well, so the most common thing that is used at NASA also, it is WMAP project. It is even formed for dark matter, but also it is like a navigation in the space. It is Wilkinson. It is WMAP means Wilkinson Map Anisotropy Project. So it tells us that due to the radiation conformation between two objects, so that is stated that's how we are also. और इसके साथ में मतलब जैसे जो what we call it like जो anatomy of the galaxies in the space, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। साथ में जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अट्रैक्शन होते हैं स्पेस के अंदर किस चीज़ों से, तो उसके साथ में अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हमको क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स दिखता है, तो जिस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप फाइंड कर सकते हैं कि अर्थ यहाँ से कितना दूर है या किस डायरेक्शन में है। थैंक यू। Wow.
नासा के अंदर जो नया प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी उन्होंने नया पता नहीं, काफी पुराने स्टार्टिंग से यूज होते हैं। Okay. ये सोवियत ये मतलब सारी कंट्रीज यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, क्योंकि मेनली डार्क मैटर को फाइंड करने के लिए बना था, बट स्टिल इट इज आल्सो यूज्ड इन नेविगेशन। नेविगेशन, यस, फाइन। Okay, next question. Yes. Hello, Kautilya. One more question. Do you really believe in God or any supernatural power? Well, yes, of course. I do believe in God, and well, मैं ब्राह्मण हूँ, and of course, well, I truly believe in God. Well, my personal faith is that what is God? Well, my definition that I created is God is the entity. God is the entity in the super force due to which everything is there. Well, of course, we say that due to God only, and that's true. So, what should be God as per science? What I think, as science student, I think that God is an entity which is a force. So, the force, the super force due to which, well, if you talk about before the cosmic inflation theory only, well, God is undefined till this science because we don't have such powerful technology and such esteemed powers of tech that we can identify it, but still, God is the entity that is said to be a force due to which all the universe and everything is there existing and being creating in the whole universe. Thank you. आपने जियोग्राफी की स्टडी बुक्स पढ़ के की या कोई और रिसोर्स ऑनलाइन और वैसे कुछ? Well, till now I've never used online stuff. Like if you talk about bikes and all, I've never used them. But yet, well, I and my Dadaji, we were there, and at the time I was 5 years old. At the time, I learned lots of stuff of geography. So they helped me with a book, an Oxford School Atlas. It's a normal atlas book. So well, we did it from it. We did many of the stuff from there, and not only that. Further, we correlated many things, other things, and also then we exceeded not only to one book but many of books, and also facts, and also like there was at the time there was a photogenic memory that was being created in my brain, and I could have seen. Well, I could easily remember everything, and like a photo of the globe and the map was in my brain, so it was like a photogenic memory for that helped me in geography, and due to which I am pretty good in geography. Thank you. आप जो भी स्टडी करते हो वो बुक से ही करते हो क्या? नहीं, well, it is not dependent. Mainly, well, resources बस बुक्स नहीं है या बस ऑनलाइन कोर्सेज नहीं है. मैं आपसे इंटरैक्शंस बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं कि ट्यूर जैसे मैं आया अहमदाबाद घर से, तो इसके अंदर मैंने बहुत सारी नई चीजें देखी. This is indeed this kind of learning is very important, और आप इससे वो चीजें सीख सकते हो जो आप नॉर्मली नहीं सीख सकते. तो वेल कन्वर्सेशन से, किसी से बात करके, इंटरैक्शन प्रोग्राम्स में और क्यूर पे ऐसे बहुत सारे नॉलेज आप हर जगह से ले सकते हो, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन यू दैट हाउ डू यू टेक इट और आप उसको कैसे डील करते हो. थैंक यू. तो चलिए इसके बारे में मैं पूछूंगा आपको. मुझे ये बताओ कि आप तो जब जैसे चलते हो या तो ड्राइव मतलब कहीं बैठे हो या तो कैसे भी, तो सीधे बैठते नहीं हो. कॉमन सवाल करता हो. और जब जो भी देखते हो, आपने बोला कि मैं ये सब विजुलाइज करके मैं करता हूँ, राइट? तो आप ऐसे मतलब ग्रास्पिंग कैसे करते हो कि आपको ये सब कैसे आप उसको विजुलाइज करके कैसे ले लेते हो? आप देखते नहीं हो, मेरे सामने तो ज्यादा देखते नहीं हो, सब लोग सर के सामने देखते नहीं हो, इनके सामने देखते नहीं हो, तो कैसे आपको पता चल जाता था कि इतना ही है, यही है, ये ऐसा ही है, वो कैसे पता चल जाता है? मैं आपका क्वेश्चन इज a bit undefined. I didn't understand it. Okay, फिर से because it was like a bit undefined. ठीक है, कैसे आप कैसे इसको विजुलाइज करते हो कि आपको याद रह जाता है? सिंपल क्वेश्चन. Yes. So he wanted to ask you. You said about photogenic memory. So he said कि you are not focusing much on vision. तो फिर photogenic memory कैसे develop किया आपने? Well, नहीं. That's like of course मैं सभी की तरफ देखता हूँ. अभी मैं कैमरा की तरफ देख रहा था क्योंकि कैमरा से इम्पोर्टेंट या कोई चीज नहीं है देखने के लिए. So well, of course, for photogenic memory you have to visualize everything. और
फोटोजेनिक मेमोरी मैंने बहुत सारी चीजों को कोरिलेट किया, जिसके लिए मेरे को, अगर हम फोटोजेनिक मेमोरी नहीं, अगर आप नॉर्मली भी देखते हैं, अगर आप चीजों को कोरिलेट करते हैं कि इसके पास ये कंट्री है, ये चीज है, एनाटॉमी स्पेस की भी, तो you can easily identify it, but the most important thing that happens it कि आपको you have to, the easiest way is correlation, but also अगर आप वो नहीं करते तब भी आप visualize कर सकते हो by your imagination power. Okay, so is it, can you share any incidents of your life जहाँ पे you don't have the actual vision but आपने through visualization, जैसे भी आपने बताया, या through your imagination कुछ सीखा हो? देखिए, of course everything, बहुत सारी चीजें imagination से, मतलब जैसे जो भी नए इन्वेंशंस होते हैं हम उनको विजुअलाइज तो कर नहीं सकते क्योंकि वे अभी हमारे पास है नहीं, तो वे साइंटिस्ट भी वे क्या करते होंगे, वे उसको इमेजिन करके फिर बनाते हैं। तो ऐसे आई हैव डन सच लॉट ऑफ ऐसे मेरे बहुत प्रोजेक्ट्स एंड इन व्हिच देयर इज इमेजिनेशन इज द मेन रोल मॉडल, और इमेजिनेशन की वजह से ही मेरा एक काफी इम्पोर्टेंट मैंने करा है कि फोटोन को हाउ कैन वी चेंज any particle into an energy particle, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ बट आई एम इमेजिनेटिंग इट। ऑल्सो मैंने जो हाई स्पीड ट्रैवल है वो मैंने फोटोन के बाइंड होके चीजों को चलाना, सो दैट इज एन पीस ऑफ इमेजिनेशन। इफ यू इमेजिन द थिंग्स देन ऑफ कोर्स you can find something which can change the whole world, your life and of course the life of the whole humanity. Very nice. एक बहुत सिंपल क्वेश्चन काफी लोगों के दिमाग में होगा कौटिल्य, जैसे यहाँ कोई भी बच्चा थोड़ा भी इंटेलिजेंट होता है तो उसके माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो आप क्या बनना चाहते हो? What is your future plan? Well, I want to be an astrophysicist. Very nice, astrophysicist. Good. और एक और It's a क्वेश्चन. bit complicated than doctor and engineer. Absolutely. The second question I have, मैंने आपकी एक हेयर स्टाइल देखी है, तो एक अच्छी सी चोटी पीछे है, तो आपको लगता है कि इसकी वजह से ज्यादा मतलब एनर्जी और सब कुछ मतलब यूनिवर्स से ले सकते हो, तो कोई ऐसा स्टाइल हम भी हमारे बच्चों में उसको भी करवा सके? इट इज यूजफुल, व्हाट डू यू थिंक? Well, ये क्योंकि आधी पॉपुलेशन ही कर पाएंगे, क्योंकि आंटी जी और मेरी बहनें तो नहीं कर पाएंगी ना। उनको तो है ही पहले से ही, वो आंटी जी और बहनों को तो है ही, वो बच्चों के लिए हम पूछ रहे हैं कि उनको ये बढ़ानी चाहिए जिससे ब्रेन पावर बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है? ये साइंटिफिकली भी है और हमारे रिलीजन के अंदर हर चीज साइंटिफिक है। ये चोटी इसलिए रखते थे क्योंकि जो बाल है वे माइंड की, ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी खींचते बनने के लिए 24, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है मतलब ये मेडुला पार्ट है और ये सारी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हम इसको कवर नहीं रखते हैं तो उसकी वजह से जो सनलाइट है और बाकी सारे वो उसको अफेक्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा बाल रखोगे तो दैट वुड अफेक्ट योर ब्रेन पावर और एनर्जी को बहुत खींचते बाल। दैट्स व्हाई हमारे रिलीजन के अंदर इट्स एवरीथिंग इज साइंटिफिक। अगर आप देखो तो हर चीज साइंटिफिक है, तो वेल दिस इज आल्सो साइंटिफिक वे, इसलिए शिखा रखते हैं सब लोग। तो मतलब यहाँ सबसे निकाल देना चाहिए, इधर ही रखना चाहिए सिर्फ, मतलब पूरा मुंडन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत पीछे होना चाहिए, एंटीना जैसा कुछ होना चाहिए, तो एनर्जी और सब उसमें ले सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड, एंड दिस इज राइट थिंग, इट इज अ साइंटिफिक, आवर रिलीजन rituals are all rituals, natural rituals are scientific, तो शिखा क्यों रखनी चाहिए? You can find in Google also, आप अगर उसमें भी सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा कि what is the scientific reason of शिखा। One question I want to ask you, कौटिल्य, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो लेंगे, बट लाइक जैसे आपकी लाइफस्टाइल दूसरे बच्चों से अभी काफी डिफरेंट हो गई ना? नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल भी नहीं, वो भी जब बोर हो जाते हैं तब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। Okay, so you are बिल्कुल भी नहीं। आप मम्मा से पूछ के देखिए, मम्मा कहती कि मैं तो तंग हो जाती हूँ, इट्स लाइक well of course मैं मस्ती बहुत करता हूँ, I'm a moody man and I like it's normal, I'm just like that boy, मैं उसी भाई की तरह हूँ। well I don't even care about anything and just move out there। हेलो, आजो ऊपर आजो। मम्मी से पनिशमेंट मिली है क्या? बहुत ज्यादा। बहुत बार अगर आप कल आते तो आपको पूरा पता चलता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पीछे। यस।
लीजिए पहले उसको। How many planets are in the solar system? Well, of course, it's 8, and there are 5 dwarf planets, which are Pluto, Makemake, Haumea, Eris, and Ceres, and there are 7,468 comets, 7,98,431 cygnoids, 18,04,560 asteroids, and also if you talk about Kuiper Belt, Mealy comets, so they are plus 3,000 till now. And if you talk about planetary satellites, then there are 228. But it is said that there can be more than 3,000, which is yet to be discovered. And also there are more than 676 natural satellites of not only of planets but also of stuff like dwarf planets. For example, like Pluto has 5 dwarf planets. Pluto has 5 natural satellites like Cassini, Makemake, Miranda, and many others. So well, like this, there are said to be total near about more than 500 billion objects in our solar system, and into 126 billion times in our galaxy, and more than 220 billion times in our universe, which is said to be 9.4111 into 10 raised to power 46 trillion into 5 raised to power 3. Thank you. आपने ये सोलर सिस्टम का पूछा और सिर्फ प्लेनेट का पूछा, उन्होंने पूरा ब्रह्मांड खोल के आपके सामने रख दिया. So this is the power of knowledge. Hello Kautilya. My question is apart from science and physics or geography. I want to ask, when you get bored from studies, what do you do for your refreshment? आजकल तो मैं वेट वाइप्स यूज कर रहा हूँ. But normally when I'm bored, normally like I play games with my friends. Suppose in school I play pen and all, and even we play audio and all. And well, at home whenever I watch TV. मम्मा अलाउ नहीं करती, लेकिन तभी कुछ के थोड़ा लट बैठ के मैं कर लेता हूँ. I even watch TV and I play sports. So how much time do you watch TV or use mobile phone? Well, अगर मेरा बस चले तो मैं सारे दिन देख सकता हूँ, लेकिन होने नहीं देता. So well, I don't watch phone at all. Well, my parents even don't allow, and even I don't like watching phone and all. But of course, I love watching TV and different stuff on it. टीवी में क्या देखना पसंद है? ज्यादातर बच्चों को कार्टून देखना पसंद होता है और स्पोर्ट्स देखना पसंद होता है. तो आप जब टीवी देखते हो तो आप ज्यादा I watch English shows like Colors Infinity, HD and stuff, but also I even watch sometimes I watch sports and movies also, and well, not cartoons. Not cartoons. देख लेता हूँ कभी-कभी. Hello Kautilya. Exactly right now what there are corruption in these countries. What is exactly country India as per like you? India is a group of different cultures, societies, different ambitions because of people, different thoughts, different varieties, and every sort of different thing that can happen in the world. That's India. Thank you. कौचिले क्या कभी ऐसा होता है आपके फ्रेंड्स ने लास्ट मोमेंट पे स्टडी नहीं की हो और शॉर्टकट यूज करके आपसे 10 मिनट बात करके सब कुछ जान लिया हो एग्जाम के लिए? ऐसा करते हैं फ्रेंड्स क्या? Well, ऐसा शॉर्टकट तो नहीं यूज करते, लेकिन पूछ जरूर लेते एग्जाम के बीच में. अच्छा, एग्जाम के बीच में चालू एग्जाम नहीं? Well, I don't do it. मतलब मैं हेल्प कर देते हो थोड़ी? नहीं मैं नहीं करता. मैं इवन टीचर को बता देता हूँ. वेरी नाइस. चलो वो अच्छी बात है. नहीं मतलब जो भी जिसके साथ जो पहले कुछ कहता है तो मैं हर बार फंसवाता हूँ. नहीं, आपके सामने तो टीचर को भी ऐसा लगता होगा ना कि अब इनको मैं क्या पढ़ाऊं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. टीचर पूरा डांटती है, पूरा पढ़ाती है. नहीं, लेकिन उनको प्रिपेयर होके आना होता नहीं, है. ऐसा नहीं है. वरना आप बोल देते हो कि नहीं टीचर ये गलत है, आपने ये इक्वेशन गलत लिख दिया है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसा होना. जैसे उस बच्चे ने पूछा कि कितने प्लैनेट्स है तो आपने पूरा ब्रह्मांड खोल दिया. तो फिर टीचर अगर कोई एक चैप्टर पढ़ाती होंगी तो आप भी मेरी टीचर डांट देती है, लेकिन बोलने नहीं देती. बाहर निकल जाओ, बाहर बैठ जाओ, ऐसा करती है. इतना भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डांट देती है. फाइन.
हाय कौटिल्य, मेरा क्वेश्चन टाइम ट्रैवलिंग पे है। टाइम ट्रैवलिंग को लेके बहुत सारी थियरीज अवेलेबल है, तो मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? अगर नहीं है तो व्हाई नॉट? Well, टाइम ट्रैवलिंग इज पॉसिबल। इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं, जैसे कि एक फोटोन को अभी 1 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके अंदर एक फोटोन एक जगह से दूसरे एक फोटोन से वो कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर दूसरे फोटोन से कनेक्ट हो जाते हैं बिना कुछ करे। इसका मतलब है टाइम ट्रैवल, इसका मतलब है टेलीपोर्टेशन एंड टाइम ट्रैवलिंग इज पॉसिबल, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग तब होती है जब 2 डायमेंशंस के बीच के जो गैप्स होते हैं वो मिट जाते हैं, तब टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। और अगर वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टिल नाउ, बट स्टिल देयर एविडेंसेस, और अगर नहीं भी है तब भी देयर कैन बी फर्दर टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिएटेड। एंड इन साइंस मैंने कल भी बताया था, देयर इज अ थिंग व्हिच इज ऑलवेज देयर, दैट इज होप, क्योंकि अगर एक थ्योरी उसको गलत प्रूफ कर सकती है तो अगली थ्योरी उसको राइट भी प्रूफ कर सकती है। साइंस के अंदर हमेशा होप होता है किसी चीज को होने की। थैंक यू। अगर टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल हुआ तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? Well, I would love to go at the time of Gandhiji and face the difficulties and just see that how like that, because if you just listen that what Gandhiji did, it seems to be impossible that how can one man stop an entire empire, of the world's biggest empire that never faces a night. So that was something where I would love to go at the time of Gandhiji and just see that how he did it and just see the impossible works he did. Thank you. Great, very nice. I think we can accommodate one last question only. Yeah. I guess per time. सबकॉन्शियस माइंड वो क्या है और इसको 100% लाइफ में इम्प्रूव कैसे करें? क्या? Subconscious mind. What is subconscious mind? Subconscious. And how can we apply subconscious mind 100%? So there are 2 types of mind. One is conscious mind and second is subconscious mind. देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पूछा, ये बिल्कुल मेरे अभी ब्रेन में, तो इट इज एन कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का मतलब है जो भी कॉन्शियस है, मतलब जिसको हम याद करें। लेकिन सपोज अगर मैं 3 साल या 4 साल बाद इसको देखता हूँ तो मे बी मेरे को वो उतनी अच्छी तरीके से याद ना हो और वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया हो। लेकिन अगर आपको हमेशा एक चीज को कॉन्शियस माइंड में रहना है तो यू हैव टू ऑफ कोर्स रिवाइज इट, एंड ऑल्सो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बहुत कम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक अ स्टोरेज ऑफ एवरीथिंग। जो भी आप अपनी पूरी जिंदगी में करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। इट इज देयर। सबकॉन्शियस माइंड की वजह से कभी कभी ड्रीम्स भी आते हैं, क्योंकि जो पुराने ड्रीम्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आते हैं। एंड of course subconscious mind is something that due to which it is just like a mystery to the mankind, क्योंकि उसको अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया as compared to conscious mind, क्योंकि conscious mind के अंदर आप जो भी प्रेजेंट के अंदर आपको याद है वो होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी होता है that is like a mysterious box which is yet to be opened, और उसको ओपन करना it is as difficult as not solving a pie. Thank you. Kautilya, लास्ट में यू आर इन अहमदाबाद सिंस एटलीस्ट 2 days, तो अहमदाबाद के बारे में कुछ कहना चाहोगे? और अहमदाबाद के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो अहमदाबाद वालों को ना पता हो और आपने कुछ ऐसा ढूंढ लिया हो, सर्च कर लिया हो या आपको याद हो ऐसा कुछ? Well, but first of all, I would like to say अहमदाबाद की हर चीज निराली है और सबसे ज्यादा यहाँ के लोग प्यारे, क्योंकि जितना उन्होंने मेरे को प्यार दिया है, that's very great, and for that I would like to give a big round of applause to the people of Ahmedabad, because due to them, due to their affection, due to their love, everything is possible, and they are great, and I've never seen such beautiful people under one roof. Thank you. कौटल्य, मैं आपकी मम्मी से एक बार कुछ पूछना चाहता हूँ। एक बार दो ना होंगे, और आपसे भी बाद में आ रहा हूँ आपके पास। मम्मा अभी फेसबुक चला रही है। फेसबुक चला रही है ना वो। मैडम, मुझे ये बताओ कि आपको कब पता चला, मतलब कॉमन सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि इसका बोर्न होने के बाद कब पता चला कि ये इसके अंदर इतनी शक्ति है
वैसे एक बार मम्मा तो बोलेंगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मम्मा को तो पता नहीं था, लेकिन मेरे को पहले से कॉन्फिडेंस था कि मैं अच्छा हूँ। शायद नहीं, वो मम्मा भी बताएंगी, लेकिन मम्मा को जो भी लगता है, लेकिन मेरे को पहले से लगता था कि मैं अच्छा हूँ, मैं बोलू टाइप का नहीं हूँ। थैंक यू। अब मम्मा बोलेंगी। शुरू से कॉन्फिडेंस था अपने अंदर। हाँ, कॉन्फिडेंस था, पूरा कॉन्फिडेंस था। ओके मैडम, कब पता चला ऐसा और क्या देखा इसमें कि आपको मतलब इतना एक्टिव है, इतना सब कुछ मालूम है और कितना परेशान करता है आपको? मैंने 2-3 सवाल एक साथ में पूछ लिया आपको। हमें तो मार्च 2013 में ही पता लगा था, पढ़ाई से संबंधित। जब ये स्कूल भी नहीं बैठना शुरू किया था, स्कूल में भी इसने तो मतलब 3-4 साल के बाद, 5 साल के बाद? एजुकेशन तो 5 साल के बाद है। मार्च 2013 तो ये कहीं गया हुआ था गोवर्धन परिक्रमा के लिए, वहां हमें पता लगा जो भी साइन बोर्ड आए इसने सारे पढ़े, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। हमें तो तभी पता लगा था कि कौटिल्य को हिंदी और इंग्लिश पढ़नी आ गई। उससे पहले कौटिल्य स्कूल में बैठता भी नहीं था। ये कल इसने बार बार कह रहा था मेरे की ठुकाई होती, पिटाई होती है, उससे पहले इसकी बहुत अच्छी तरह से पिटाई भी हुई है। हाँ, मतलब एक बार ना जैसे मैं क्लास में नहीं बैठ रहा था, क्लास में गया, मैंने वॉशरूम करने के लिए मैम से पूछा और मैं ऊपर जाके घर पे बैठ गया, तो फिर पापा जी आए डोगा लेके, उस टाइम वो डोगा रखते थे, मेरे को इतने मर के मेरे रोने लगा, तो वो मम्मा ने बचाया। जो इसकी पिटाई हुई 2013 में, उसके बाद कौटिल्य ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कौटिल्य मतलब जो भी बच्चा है यहाँ पर, मतलब एक बार पीट लो तो कौटिल्य बनेगा ऐसा? नहीं, ये क्लास में नहीं बैठता था। ओके, आने लगाता था। ग्रेट। कौटिल्य, तू जो भी पढ़ता है उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता है? मतलब वो जो भी बुक पढ़ता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट आता हो तो वो आपके कभी भी आप उसको कभी भी नहीं भूलते, लेकिन अगर आप उसको क्रैक करते हैं या उसका कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होता तो एक इंटरवल के बाद आप उसको भूल जाते हैं। लेकिन मैं हर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए जो भी चीज मैं देखती हूँ उसको काफी टाइम तक आए, वो मेरे माइंड के अंदर रहती है। थैंक यू। कितना घंटा अभी रीडिंग करता है? रीडिंग पक्का नहीं है, जब मेरा मूड करता है पढ़ने का तब मैं पढ़ता हूँ, जब मूड नहीं करता तब मैं नहीं पढ़ता। मूड कभी करता है ऐसा कोई है, कोई टाइमिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी मतलब मेरा मूड करता है तब मैं पढ़ता हूँ, जब नहीं करता, जब जिस चीज का भी मेरा मूड करता है मैं वही पढ़ता हूँ, मैं वही करता हूँ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके अंदर आपकी 100% मेमोरी और 100% पावर एक चीज को लेकर होती है, वरना अगर आप किसी और चीज को आप कोई और चीज करना चाहते हो और कर कुछ और रहे हैं तो ऐसा होगा कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। मुझे बताओ कि इन सबको कुछ जानना था, बच्चे हैं यहाँ पर, हम भी बच्चे आपके सामने। मुझे बताओ कि जब आप स्टडी करते हो, पढ़ते हो, तो क्या चीज ऐसी ध्यान रखते हो कि आपको मतलब सब चीज याद रहती है? हम जब पढ़ते हैं तो हमें और भी याद रहता है, मतलब कुछ याद आ जाता है, हम पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो क्या चीज ऐसी है कि आपको याद रह जाता है? देखिए, मतलब जब भी अगर सपोज आप कुछ और करना चाहते हो और अगर आप स्टडी करते हो फिर बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आपके ब्रेन में आएंगे, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तब क्यों आएंगे? बिकॉज ये आप अपने माइंड से सेटिस्फाइड हो और आप खुद एक एफर्ट कर रहे हो कि मैं पढ़ूं, कि मैं लर्न करूं इस चीज को, फिर ये कैसे आएंगे? देन there wouldn't be any kind of disturbance or any kind of obstacle in your brain that would stop your way like a barrier. लेकिन अगर सपोज आपका मूड नहीं है पढ़ने का, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तब ऐसे चीजें बहुत बार आएंगी। कौटिल्य, पता नहीं लास्ट सवाल होगा मेरा, मुझे बताओ कि इंडिया का स्क्वायर मीटर कितना होगा टोटल? स्क्वायर मीटर या किलोमीटर? स्क्वायर मीटर, किलोमीटर। ओके, इट इज 32,87,262 किलोमीटर्स, स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन अगर हम इसको मीटर में करेंगे तो 1000 into 1000, इसका मतलब है into 10 लाख टाइम्स, क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो into 10 लाख, 1000 नहीं into 10 लाख, तो वो बनेगा 32 लाख का 32 into 10 लाख, इसका मतलब into 1 million, वो आंसर होएगा उसका स्क्वायर मीटर्स में, वरना स्क्वायर किलोमीटर्स इट इज 32,87,262
गुजरात कितना होगा? Gujarat is near about 1/17th part of it and 7th उसका सबसे बड़ा state है and it is near about 1,30,000 near about. गुजरात का पॉपुलेशन कितना होगा? गुजरात का पॉपुलेशन as per 2011 census 2011 के अनुसार it is crossed 6 crores sorry and it is yet increasing by a rate of 1.7% each year. हमारे पास कोई सवाल ही नहीं है. लास्ट टेक होम मैसेज ये सारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए. So just go on with the passion and just understand the things, never cram it, because if you understand the things, then of course आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी and you love to do it, and if you love to do anything then you can just shape your life and your motto should be don't be a change, you don't be a part of change, you have to make change, and if you want to make a change then just love the stuff you want to do, and if you love it then of course whatever you want in your life you'll achieve it and you'll touch the sky and you'll cross the limits. Thank you very much. लास्ट में मम्मी आपको कुछ बोलना चाहती है. ये पॉपुलेशन वगैरह इसने 2013 में ही याद की थी, उसके बाद इसने एटलस देखी भी नहीं है. नई नई चीजें याद करता है, सीखता है नई नई चीजें. ग्रेट. थैंक यू. अभी कोई है किसी को सवाल घर जाके याद आएगा कि यार मेरा सवाल ये था, मैं भूल जाऊंगा? मैडम वो भाई साहब को कुछ पूछना है. Hi Cordelia. Hello. Really appreciate your mesmerizing memory यार. You know ये ऑडियंस में जितने बैठे हैं ना, किसी के पास शब्द नहीं कुछ बोलने के लिए. And I really salute to your memory. Thank you. And your confidence, you know. Thank you. So Cordelia, one question to you, simple question. How you are spending your day? You know, दिन तो पे क्या करते हो? मैं अपना डे मस्ती करके स्पेंड करता हूँ. मैं उन जो पीछे आप सारे बच्चे देख रहे हैं मैं उनकी तरह ही हूँ. And I just pull myself, जो भी मेरे को पसंद है करना मैं वही करता हूँ. And I go on with my mood और ऐसा करके I am very happy और मैं पूरे मस्ती से I do everything that I want. Thank you. Okay, thank you so much. सही बोल रहा है, पूरे दिन मस्ती करता रहता है. कल हम मार्केट में लेके गए थे, हमारे साथ था, वो हाथ में ही नहीं रहता था, घूमता रहता है टोटली. कभी जब टीचर डांट मारती है तब तो कौन जाना पसंद करता है, लेकिन जब टीचर अच्छी बन जाती है तब हर कोई जाना पसंद करता है. इट्स डिपेंडेंट ऑन मूड ओनली. ओके, तो कई बार ऐसा भी जब दिन अच्छा जाता है तब जाने का मन करता है, जब दिन बुरा जाता है तो क्यों जाने का मन करेगा. सो ऐसा होता है क्या स्कूल में कि बिकॉज जो भी पढ़ा रहे आपको शायद सब पता है तो फिर बोर लगता है या लगता है कि क्या कॉन्सेंट्रेट करूं, ऐसा होता है कभी? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है. यस. लेकिन बोर नहीं लगता क्योंकि टीचर अगर सपोज हमको आता है तब भी जो टीचर्स है वो हमको ऐसी चीज बता सकती है कि जो हमको नहीं आता. मे बी हमको वो पहले से आता हो लेकिन टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हमसे कहीं गुना अच्छा है क्योंकि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें फेस कर रखी है जिनको वी आर येट टू बी फेस्ड और उनके पास वो नॉलेज है. सपोज हमको उनसे थोड़ा उस चीज के बारे में डीप नॉलेज हो, हमने बहुत खुद ही पढ़ रखा हो, लेकिन जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है जो वो हमको बता सकती है, दैट इज समथिंग दैट यू कांट लर्न बाय योरसेल्फ. थैंक यू. I think everyone is mesmerized with his memory and his maturity. Just memory and knowledge नहीं है, but he is very much mature the way he is giving answer. But I think time is not permitting us, so everyone is waiting to have a selfie with you. टोटल एक क्वेश्चन मैसेज पे आया है ऑडियंस से. व्हाट इज, क्या लिखा है? यस. Higgs boson. Higgs boson is also known as God particle. Well, its real name was goddamn particle. Many of you would be knowing that. ये इसलिए क्योंकि there was an experiment that took millions and billions of उसका खर्चा हुआ था, but due to which everything was combined and due to the reactions of the metallic and non-metallic structure and the elementation and its fusion of its variation that happened, but due to which another
पार्टिकल, हजारों पार्टिकल्स को मिलाने के बाद, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक और पार्टिकल निकला जिसका नाम था हिग्स बोसोन, and that's why it was named as God particle, because due to lots of experiments that happened and its value was something that is yet to be explored. So Higgs boson is a particle which is also known as God particle, because that is made up of, that is one of the that is not one of the, that is a part that came, that is the benefit that came out of the world's biggest experiment till now regarding alimentation and new discoveries of elements. Thank you. Okay, Kautilya, thank you. अंकल जी आपके ना बैचेस बहुत अच्छे, एक बार दो तीन और दे देना, बहुत अच्छे हैं। कौटिल्य तू बैचेस भी ले जा और भी क्या चाहिए ले जाना। Okay. So big round of applause for Kautilya. इतना कम नहीं चलेगा। Yes. हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। Yes. और कौटिल्य को पता चलना चाहिए कि अहमदाबाद क्या है। तो पहले से मैंने उनको बोल के लेकर आया था, तू अहमदाबाद में आएगा तो तुझे पता चला कि अहमदाबाद कौन है, अहमदाबादी कैसे है, पता चला। अहमदाबादी कैसे अंकल जी ने ना लाइक को मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तो अंकल जी ये यहाँ से निकल गए, तो अंकल जी ने वो नहीं करा, अंकल जी ने सीधा ऐसे डाल दिया और फिर कहा ये होता है गुजराती। मतलब मेरी ले ली या क्या किया तूने? ओके, तो मैं दो शब्द मतलब कल के लिए और आज के लिए बोलना चाहता हूँ कि कल हमारे चीफ गेस्ट थे मदर एंड टोडलर की तरफ से, एमटीआई की तरफ से, आइडिएशन डिजाइन स्टूडियो की तरफ से। मैं कल जो हमारे गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे, और कल जो जिसने हमारा प्रोग्राम किया द स्कूल पोस्ट, इन सबका मैं आभारी रहूंगा। मुझे हमारे एग्जीबिटर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मुझे जिन जिन से सपोर्ट मिला है, मेरी टीम से सपोर्ट मिला, मैं उन सबका आभारी हूं, क्योंकि ये विचार था हमारा कि हमें ऐसा कुछ करना है, मगर सिर्फ विचार था। इसके बाद जो कॉन्क्रीट हुआ, उसके बाद जो हमारी टीम का सपोर्ट मिला, इसके बाद उन लोगों ने देख लिया कि मैं हम लोग हैं, ये सब देख लेंगे, सिर्फ आपका विचार आ गया है, उसको करना है। और ये विचार जब से आया, इसके बाद मैं पारस भाई को मिला, उनका भी मैं आभारी हूँ, डॉक्टर मैडम का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तुरंत ये बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, डोंट वरी, इसको हम आगे ले जाएंगे, कैसे आगे ले जाना है और सबको मैसेज देना है। अकेला लोग करते हैं, सब एग्जीबिशन करते हैं, वहां से कॉमर्शियल पार्ट से देखते हैं, मैं कॉमर्शियल पार्ट से अकेला नहीं देखना चाहता हूं। मुझे कॉमर्शियल पार्ट के साथ लोगों को मैसेज देना है कि ऐसा भी होता है कि एग्जीबिशन के साथ नॉलेज लेके जाओ। सर ने बताया कि आप कुछ खरीद के जाओ, साथ नॉलेज भी लेके जाओ, बराबर। तो मैं सबका आभारी रहूंगा, मेरी टीम का, द स्कूल पोस्ट का, पारस सर का, डॉक्टर मैडम का, मैं सबका आभारी रहूंगा। मुझे सबका सपोर्ट मिला और हमारी टीम स्टेज पे आएगी, सबके साथ मैं इनको कुछ छोटी सी गिफ्ट, देखो एक्चुअली मैं भूल गया कि कौटिल्य पंडित का मैं सबसे आभारी रहूंगा, क्योंकि जब मैंने उनको मिला, मेरी टीम ने उनका डायरेक्ट नंबर ढूंढा, बात की, बात करने के बाद इतने लोग, आपको एक चीज और भी बता दूं, पूरी दुनिया में ये प्रचलित है, सब लोग जानते हैं इसको, मगर जब देखा नहीं था इसको मैंने, तब तक मुझे लगता था यार एक बड़ी सेलिब्रिटी है, ये बात नहीं करेगा, ये हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा। जब मैं उसको फेस टू फेस मिला, मैंने उसको मैंने वीडियो कॉलिंग किया था, इसके बाद जब मैं फेस टू फेस मिला, आपको बताऊं, उनके पेरेंट्स, उनके दादाजी, उसके मम्मी पापा इतने डाउन टू अर्थ है। मेरे ख्याल से आई थिंक मैं बोलूं ना तो ये 5 कंट्री से ज्यादा घूम के आया है, सभी कंट्रियों ने इनवाइट किया था उसको, और स्पेशली इनवाइट उसको बुलाया था। तो यार इतना बड़ा है, जब बुलाता है, लोग देखते हैं कि ये तो बड़ी सेलिब्रिटी है, चलो आओ, और फिर भी उनके पेरेंट्स को आज भी कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि यार हम तो ये इतने सेलिब्रिटी के बेटे, माँ बाप हैं, हमारा इतना अच्छा बेटा है। आज भी वो डाउन टू अर्थ सबसे बात करते हैं। आपने देखा होगा 2 दिन से हमारे साथ हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि ऐसा उसके मन में है नहीं। कौटिल्य, मैं अहमदाबाद की तरफ से, मैं एमटीआई की तरफ से, मैं आइडिएशन डिजाइन स्टूडियो की तरफ से मैं आपका आभारी रहूंगा। आपको खूब खूब थैंक यू, धन्यवाद।
मेरी टीम का भी मुझे धन्यवाद, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे स्ट्रांगली बोल दिया कि हम लोग ये सब देख लेंगे, और मेरी पूरी टीम के साथ मैं इनको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। छोटी सी गिफ्ट है, आपको वो लेनी पड़ेगी, अब मना करो, प्यार से लेनी पड़ेगी। गिफ्ट हम कभी भी मना नहीं करते हैं, और स्पेशली जब वो फ्री हो तो कभी भी मना नहीं करते। मेरी टीम है। एंड दूसरा सबसे बड़ी बात है कि मेरा पार्टनर कृपल, उसका मोरल मोटिवेशन इतना स्ट्रांग था कि किरीट भी हम लोगों ने सोच लिया है तो टॉप पे जाना है, इस चीज को लेके पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इसको घुमाना है। मेरा एक फ्रेंड रहता है साउथ अफ्रीका में, उसने बोला ये पहले शो वहां पर करो, मगर पारस भाई को लेके आना, वहां पर भी सबको गर्भ संस्कार दिखाना है, वहां पर भी ये सब चीज सिखानी है। अभी पारस भाई ने ये बोल दिया हमें, हमारी टीम को बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम इसको अच्छा सबसे बड़ा करेंगे हम, और सबके घर घर जाना चाहिए कि गर्भ संस्कार से क्या होता है। आप जो सोचते हो वो आपका बेटा होता है, बेटी होती है कि नहीं, वो इन सर से जानना है, इन मैडम से जानना है। आप जो सोचो वो होता है, वो डैम श्योर। सही है कि नहीं? तो ऐसा बिजनेस में भी होता है, ऐसा बॉर्न चाइल्ड में भी होता है, सब चीज में होता है कि आप जो सोचो वो होता है, वो पक्की बात है। तो मेरी टीम को मैं इनवाइट करूंगा स्टेज पे, प्लीज कृपल एंड मेरी टीम। एक बार जोरदार ताली किरीट भाई और कृपल भाई के लिए भी। तो इतना अच्छा इन्होंने बोल दिया कि मैं करूंगा, डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ। ये बलजीत है, हमारे साथ ही रहता है 24 आवर्स, बोल दिया कि मैं आपके साथ ही हूँ। ये टीम है सोनाली, ये हमारी टीम है, सब आ गई। ओके, तो ये हमारी टीम के लिए कोई कंजूसई है क्या आपको? हमारी टीम ऐसी बोल रही है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, नॉलेज के साथ एग्जीबिशन करेंगे, आने वाले टाइम में सबसे अच्छा हमारा एग्जीबिशन होगा। सही है? जोरदार ताली। यस, कौटिल्य, કિરીટ ભાઈ ને કૃપલ, બધા જ માટે જોરદાર તાલી। कौन है? ओके, एक सवाल और था। ये कौन है, दिखता है ना? इसमें हम लोगों ने बाल नहीं रखे, क्योंकि मेरे ख्याल से पहले उसको बाल नहीं था। बाल था क्या उसको पहले? एक साल से रखे, मतलब पहले निकल नहीं था। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने आपकी पुरानी यादें आपको रखी है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, आप सबको थैंक यू। कौटिल्य, एक में से नॉन फॉर्मल किसी ने पूछा है ऑडियंस में से कि आपका नाम पहले से कौटिल्य है कि इतना नॉलेज गेन करने के बाद कौटिल्य हुआ है? नहीं, ये पहले से है, मतलब पापा जी ने को के नाम निकलते पहले ही ये नाम रख दिया था। तो कौटिल्य नाम रखने से भी ये फायदा हो सकता है, मतलब इतनी नॉलेज आ सकती है। लेकिन पापा जी ने ये कहा था कि अगर ये इस नाम को सार्थक करते हैं तो रखेंगे, अगर ये नहीं रखते हैं तो इसका नाम बदल देंगे, क्योंकि फिर चाणक्य जी के नाम के साथ कोई बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। Very nice, very nice. Again, thank you Kautilya, thank you all of you.